Hello dear student. Today's our topic expansion of idea and this topic is for 11th and 12th standard. Expansion of idea is to elaborate an idea in a paragraph form. Ideally it is written in three parts: introductory para, core content एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इन हमें जो आइडिया को एक्सपांड करना है उसे हमें तीन पैराग्राफ में बेसिकली थ्री पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा कोर कंटेंट एंड लास्ट होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैरा। A good paragraph is always associated with a topic sentence, either at the beginning, in the middle, or at the end. The symbolism or the idea should be clearly understood. Given idea needs to be well evaluated and interpreted accordingly. Means introductory paragraph जो होगा वो हमारा starting वाला paragraph होगा जो हमें बेस्ट से बेस्ट आइडियाज मीन्स वी हैव टू राइट ए बेस्ट टॉपिक सेंटेंस, यानी इस तरह से टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे जो हमारे टाइटल को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, एंड इट शुड बी क्लियर and it should be well evaluated. Now, core content. Explore perspective, give instances and anecdotes, experiences or even personal experience. Means in this part, core content means you have to write about the topic in detail. So here what you will write here, as per your point of view, you have to write instances means sample, example, illustration. Then anecdotes means a short, amusing or interesting story about a real incident of life. You have to write in this part. There should be unity and clarity of thoughts. यानी आपके जो thoughts है वो clear होने जरूरी है और आपके thoughts में एक unity होनी चाहिए, यानी आप जिस topic के पे लिख रहे हो उसमें एक connectivity होनी जरूरी है. Maintain coherence and logical link between two distance point between the sentences. And for this, discourse markers, conjunction and conjunction phrase can be used. Means टू मेंटेन द कनेक्टिविटी, यानी दो सेंटेंस के बीच में एक लिंक मेंटेन करने के लिए आप डिस्कोर्स मार्कर्स को यूज करेंगे या कंजक्शन को यूज करेंगे और कंजक्शन फ्रेज को आप यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स मार्कर्स, word or phrase like anyway, right, okay, as I say, to begin with, used to connect, organize and manage what we say or write to express attitude. यानी हमारे जो भी आइडियाज है उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे, जो फ्रेज यूज करेंगे, जिसे उसे कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। तो हमें उसे यूज करना है। वर्ड लाइक नेवरलेस, furthermore, similarly, so, therefore, to be fair, by the time, thus, etc. are the example of discourse markers that we use in our everyday conversation. यानी हमारे everyday life में हम लोग जो भी sentences use करते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो भी हम लोग डिस्कोर्स मार्कर्स, कंजक्शन यूज करते हैं, तो दैट यू हैव टू यूज इन योर सेंट्रल कोर कंटेंट। Conclusion. At the end, we need to sum up suitably with strong and relevant point. यानी end जो concluding paragraph होगा वो strong and relevant point के साथ हमें conclude करना है. Use of proverb is appropriate at the end with a similar meaning sentence. Last का जो paragraph होगा उसमें proverb को use करना है. जो proverb और जो भी हम लोग उसमें use करेंगे वो हमारे टाइटल से मैच होने वाला चाहिए, मीन्स टाइटल रिलेटेड होना चाहिए। Here one example is given. The given one is tit for tat. You may sum up using another similar one. Reap as you sow. अगर हमारा टॉपिक होगा tit for tat तो उसके रिलेटेड वाला ही हमें वहाँ पे प्रोवर्ब यूज करना है और स्ट्रॉन्ग कोटेशन के साथ, प्रोवर्ब के साथ हमें हमारे एक्सपांशन ऑफ आइडिया जो हमारा राइटिंग स्किल है उसका लास्ट जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से कंक्लूड करना है। नाउ टेम्पलेट्स फॉर एक्सपांशन ऑफ आइडिया। अभी फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले टाइटल, ऑब्वियसली टाइटल यू विल गेट इट फ्रॉम द क्वेश्चन, देन फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, देन इट शुड बी इम्प्रेसिव बिगिनिंग, सेकेंड पैराग्राफ मिडिल पैराग्राफ,
focus on word interpretation, evaluation of ideas, and also you have to use your discourse markers. And third paragraph, convincing conclusion with a proverb or quotation. मीन्स लास्ट वीक के पैराग्राफ में जैसे मैंने कहा कि आपको प्रोवर्ब या तो कोटेशन को यूज करके उसको कंक्लूड करना है. So here is one example. It is from your textbook, page number 99. अभी जो टॉपिक है ट्रेवल ब्रॉडन द माइंड, ये टाइटल है, उसके ऊपर हमें एक्सपांशन ऑफ आइडिया मीन्स वी हैव टू एक्सपांड दैट टॉपिक. लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. Traveling is the best form of education as learning from the environment is more effective. If you live all your life in the same place, you are like the proverbial frog. Proverbial frog का मतलब frog in a well, यानी जो frog एक ही जगह पे रहता है, well के अंदर ही रहता है, well से बाहर ही नहीं आता है. तो इस तरह से ट्रैवलिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे तो आपकी कंडीशन मेंढक की तरह हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस. ट्रैवलिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन एज लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट इज मोर इफेक्टिव. ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है जो हमारे टाइटल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जो हमारा टाइटल है ट्रैवल ब्रॉडन द माइंड. यू डू नॉट नो व्हाट द वर्ल्ड आउटसाइड इज ट्रूली लाइक. There is no doubt that traveling broadens the mind and enlivens the spirit, enhance the spirit. Travel से हमारा mind भी broad हो जाता है और हमारे means we can enhance our body and soul. Now the second paragraph is the core content. Let's see what is that in the core content. Apart from viewing of natural and historical site, traveling enables a person to meet different people and study their customs, modes of dressing, cultures, and languages at close quarters. Meeting different people makes a person broad-minded and tolerant. यानी अगर हम लोग अलग अलग लोगों को मिलेंगे तो हम ऑब्वियसली ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं. अलग अलग लोगों के कस्टम्स है, उनके कल्चर्स है, उनकी लैंग्वेज को हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने कहा कि स्कोर कंटेंट में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं. ओके, सैम्पल्स, इलस्ट्रेशन. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखा है. कस्टम्स लिखे, ड्रेसिंग स्टाइल, कल्चर, ये सब एग्जाम्पल उन्होंने सेकंड कोर कंटेंट वाले पैराग्राफ में लिखे. नाउ लास्ट को वाला पैराग्राफ होगा दैट इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ट्रैवलिंग ब्रिंग्स पीपल क्लोजर एंड ब्रॉडन वंस आउटलुक. इट रिमूव्स प्रेजुडिसेस एंड हेल्प अ पर्सन टू बिकम a citizen of the world in the true sense. Therefore, never lose any opportunity to travel. It will be an experience well worth the time and money spent on. The world is a book, and he who stays at home, reads only one page. This quote is written by a famous Saint Augustine. He is a famous philosopher. देखो पूरे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया है, सेकंड वाले कोर कंटेंट में उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, एंड थर्ड लास्ट वाला जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग कोटेशन के साथ उन्होंने कंक्लूड किया है. वो कोटेशन किसका है? फेमस सेंट अगस्टिन जो फिलोसोफर है, उनका कोट लिख के उन्होंने उसको स्ट्रॉन्गली यानी स्ट्रॉन्ग कोट के साथ उसको कंक्लूड किया है. तो इस तरह से हम हमारे एक्सपांशन ऑफ आइडिया का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो दिस वे यू हैव टू write. So don't write more than one page. One page is more than enough for this. Okay, bye dear students. See you soon.